Hi everyone and welcome to the 7th chapter in the series of SQL. अब यहाँ पे हम बात करेंगे selection from multiple tables. अभी तक we have covered selection operation from a single table, but now we'll move towards selection from multiple tables. So उसके लिए we have some joins over here. So I'll first of all tell you what joins are, what are the various types of joins. फिर उसके बाद joins के साथ हम set theory कैसे use कर सकते हैं, indexes कैसे use कर सकते हैं. We'll discuss all of those things in the chapter. Okay, so first of all, there are basically two types of basic joins. One is over here as the inner join. The second one is the outer join. अब inner join में क्या होता है कि I'll show you with the help of a Venn diagram over here. So basically, in case of an inner join, consider आपके पास यहाँ दो tables हैं और दोनों के बीच में कुछ attributes ऐसे हैं जो कुछ rows ऐसे हैं जिनकी basis पे matching चल सकती है. So what inner join does is कि दोनों tables के अंदर जो column हम specify करेंगे, let's just say कि जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की हमने बनाया था ना इन योर व्हाट डू यू कॉल ईथन सीबी के अंदर. ईथन सीबी के अंदर इफ यू रिमेंबर वी हैड दिस पर्टिकुलर थिंग टेबल के अंदर वी हैड दिस ट्रेनर आर्टिकल का डीडीएल हम देख लेते हैं. So यहाँ पे if you remember we had specified a primary की जो ID था and foreign की was referencing the Ethan trainer credentials. Fine. So जहाँ पे भी primary की और foreign की के बीच में exact matching होगी सिर्फ वही records हमारे पास inner join से आएंगे. Then we have outer join में there are two types of, rather should I say three types of outer join. One is the left outer join, the other one is right outer join, and then there is full outer join. Although full outer join is not supported by MySQL, there are some other variants of other distributions of SQL जिसमें full outer join का support मिल जाता है. But यहाँ पे अगर हम बात करते हैं left outer join में, तो उसमें क्या होता है, left वाले टेबल में सबसे पहला टेबल जो आप स्पेसिफाई करोगे उसके सारे रोज आपको मिलेंगे एंड राइट वाले में आपको जो records या जो records में basically matching exist करेगा सिर्फ वही मिलेंगे. You can see over here with the help of this Venn diagram. Similarly right outer join में यहाँ पे if you can see जो second table आप specify करोगे उसके सारे records रहेंगे and जो condition satisfy करने वाले record रहेंगे from the first table वो भी यहाँ पे mention होंगे. Okay. अब दोनों ही जॉइंट्स के साथ में अगर आपको मैचिंग वाले रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए तो आप एक्सक्लूड कीवर्ड का यूज करके यू कैन ओमिट दोस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स. फाइन. देन वी हैव अ फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स होंगे, फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स होंगे, सेकंड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स होंगे एंड दोनों का जो मैचिंग वाले रिकॉर्ड होगा वो एक बार आएगा. रिकॉर्ड्स का डुप्लीकेशन कभी भी सीक्वल में नहीं रहता है. फाइन. सो व्हाट वी विल डू you will go to the workbench and यहाँ पे we'll try first of all to execute the inner join and उसके बाद once we get the hang of this inner join and outer join हम थोड़े से complex वाले join operation पे भी आएंगे. Okay, so inner join के लिए ना we have a syntax which specifies कि select the list of columns, यहाँ पे you can write attribute as well, select columns from table 1. Okay, so जो पहला table 1 है वो then you'll specify कि inner join कर रहे हो या outer join कर रहे हो या left outer join है, right outer join है, तो you'll specify the type of join. यहाँ पे अभी we are working with inner join, so I'll write inner join के साथ we'll specify किस table के साथ कर रहे हैं, तो we'll write table 2 and यहाँ पे we had table 1. ठीक है, तो select columns from table 1. ये column जो है table 1 के भी हो सकते हैं, यहाँ पे table 2 के भी columns हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि select columns from table 1 है तो आप ये confuse होकर बैठ जाओ कि table 1 के कॉलम मिल रहे हैं. यहाँ पे आप टेबल नेम या ऐसे भी लिख सकते हो कि let me just write this table 1 dot column I. ठीक है, then कॉमा देके you can write table 2 dot column J. ऐसे भी लिख सकते हो. फाइन. अब इनर जॉइन हमने स्पेसिफाई कर दिया टेबल 2 के बाद. अब कोई कंडीशन होगी बिकॉज प्राइमरी की फॉरेन की जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी तो जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है, तो ऑन अगर आपके पास लेट्स से प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट नहीं भी है देन यू कैन स्पेसिफाई अ रिलेशन. यू कैन से कि जहां पे ये पर्टिकुलर दोनों रिकॉर्ड्स की मैचिंग हो रही है, दोनों एट्रीब्यूट्स की मैचिंग हो रही है, वही वाले रोज हमें चाहिए. तो वी कैन राइट ऑन table 1 dot call I या table 1 dot call I is equal to table 2 dot column J.
ठीक है। अब इसके साथ में इसके बाद आपको अगर वेयर की कंडीशन अपनी लिखनी है तो यू कैन राइट वेयर द कंडीशंस आर मेट, एंड उसके बाद आपको ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग जो लगाना है आप लगा सकते हो, तो ऑर्डर बाय योर कॉलम, ठीक है। सो दिस इज द सिंटैक्स, या टिपिकल जो सिंटैक्स बन के आता है क्वेरी का इनर जॉइन के लिए, वो कुछ ऐसा निकल के आता है। फाइन, सो व्हाट विल डू इज कि एथेंस डीबी के अंदर अभी वी डू नॉट हैव दैट मेनी रिकॉर्ड्स जिसको हम एक साथ दिखाएं, सो विल मेक यूज ऑफ दिस लामेन बेसबॉल डेटाबेस, एंड इसके अंदर सिंटैक्स के अंदर ही हम चेंज करेंगे। सो आई विल राइट द लिस्ट ऑफ कॉलम्स, आई विल राइट लामेन या लामेन बेसबॉल डीबी डॉट पीपल, ओके ठीक है, पीपल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है टेबल, फाइन, डॉट प्लेयर आईडी, ठीक है। देन आई विल सेलेक्ट बर्थ ईयर आईडी एंड टीम आईडी, बर्थ ईयर आईडी एज वेल एज द टीम आईडी, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट टेबल जो मेरा रहेगा दैट विल बी अपीयरेंसेस, सेकेंड टेबल जो मेरा रहेगा दैट विल बी पीपल, ऑन appearances dot player id should be equal to people dot player id। फाइन, अब साथ में अगर वेयर की कंडीशन देनी है तो विल राइट वेयर का कंडीशन भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो आई राइट वेयर द ईयर आईडी इज इक्वल टू 2017, ठीक है। इसको रन करेंगे जैसे तो यू कैन सी हमारे पास प्लेयर आईडी आ रहा है, बर्थ ईयर आ रहा है, ईयर आईडी आ रहा है, टीम आईडी आ रहा है। सो अभी यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड के साथ मैंने प्लेयर आईडी दिया है या एक कॉलम के साथ मैंने सिर्फ जो है टेबल का नाम स्पेसिफाई किया है, बट बाकी के कॉलम्स के साथ मैंने कुछ भी टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं किया। बिकॉज अगर आप ध्यान दोगे ना स्कीमा के ऊपर, तो अपीयरेंसेस के अंदर भी प्लेयर आईडी है, पीपल के अंदर भी प्लेयर आईडी है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा बेसिकली कि कौन से टेबल से हमें प्लेयर आईडी चाहिए। बिकॉज अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो ये एक एम्बिग्युइटी रेज करेगी। आई विल रन इट वंस अगेन और उससे मैं आपको शो कराता हूँ कि एरर आएगा। इसको मैंने रिमूव किया, सेम क्वेरी है, आई विल रन दिस एंड यहाँ पे यू कैन सी कि एक एरर आ रहा है, ठीक है। एरर कोड विद 1052 कॉलम प्लेयर आईडी इन द फील्ड इज एम्बिग्युअस, ठीक है, बिकॉज ये दोनों के दोनों टेबल्स दैट इज द अपीयरेंसेस एंड पीपल दोनों में एग्जिस्ट करता है। फाइन, सो इसको अभी अंडू करेंगे ना जैसे एंड रन करेंगे तो दिस टाइम ये रन करेगा। फाइन, सो दिस इज हाउ यू रन योर इनर जॉइन। एंड सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको जो है 3 टेबल्स के साथ या मल्टीपल टेबल्स के साथ यू कैन यूज सब क्वेरीज एज वेल। तो दिस इज हाउ। अब इसके साथ अगर आपको इनर जॉइन की जगह लेट्स से आपको चाहिए लेफ्ट आउटर जॉइन, सो यू कैन राइट लेफ्ट आउटर जॉइन एंड इसको आप रन करोगे, लेफ्ट आउटर जॉइन आपको मिलेगा। सिमिलरली राइट आउटर जॉइन अगर आपको चाहिए तो यू कैन राइट राइट आउटर जॉइन एंड वो भी रन करेगा। फाइन, सो दिस मार्क्स द एंड फॉर द सेक्शन। इन द नेक्स्ट सेक्शन आई विल टेल यू कि अभी तो हमने 2 टेबल्स के साथ में इसको सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है, बट अगर यही आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो तब आप क्या करोगे। सो विल डिस्कस दोस क्वेरीज इन द नेक्स्ट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू।